अगर आपको टाइम बचाना है अपनी कंपनी का और आपको पैसे बचाने हैं अपनी कंपनी के, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैनल्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया. What are the methods of dispute resolution in power sector in India? There are 20 channels of dispute resolution in India. Reason is, if you take a wrong channel to resolve your dispute, it will waste time of your company, it will waste money of your company. IDC का क्या मतलब है आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए. If there is delay in a power project, there is a huge cost implication on that, and that delay can be caused because of the court and legal systems. If you clearly understand these 20 10 plus 10 dispute resolution channels, you will play safe, your company will be safe, your company will save time, your company will save lot of money also. So let us understand what are the 20 channels of dispute resolution. First channel of dispute resolution is regulatory dispute resolution. Electricity Act में provided है. अगर आपका कोई regulatory issue है, regulatory issue मतलब simple words में आप ये समझिए licensing से related कोई issue है, टैरिफ से रिलेटेड कोई इशू, देन इट इज अ रेगुलेटरी चैनल. रेगुलेटरी चैनल क्या है? यू गो टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जिसका ज्यूरिसडिक्शन है. उसके बाद इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू देन गो टू अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली एंड देन यू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज अ रेगुलेटरी चैनल. अगर रेगुलेटरी डिस्प्यूट है, टैरिफ या लाइसेंसिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो नंबर फर्स्ट चैनल ये है. सेकंड, अगर क्रिमिनल इशू है, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, देन देयर इज अ स्पेशल कोर्ट. सो स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी courts are there. You have to take the matter before special electricity court. Appeal will go to the high court under CPRC criminal procedure code, and then to the supreme court. It will not go to the regulatory commission or any other institution because it is a criminal matter, theft of electricity. Third है, अगर आपका सिविल इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी में अगर पैसे का मामला आ रहा है कंज्यूमर और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम के बीच में, and under section 126 and 127 authority have been created which is called assessing officer, which will decide the amount which has to be paid for unauthorized use of electricity. And if you are aggrieved by that, you go to appellate authority under section 127. So if there is a civil matter, then third channel which is called civil channel, civil courts are barred from taking up these kind of matters. Okay, so this is the appropriate channel. If you go to a wrong channel, you will waste time of everyone actually, and money also. If you go to a wrong channel, you will waste time of everyone actually, and money also. Fourth is contract enforcement. For contract enforcement, there is energy arbitration. So section 154 of the Electricity Act provides for arbitration, and those arbitrations are guided. उन arbitration procedure का जो friend philosopher guide है वो है regulatory commissions. So independent regulatory commissions जो है CERC, SERC, they will appoint arbitrators. They will understand or they will themselves become arbitrator and decide contract enforcement के issues. All right. अब हम लोग पांचवे में आते हैं, कंज्यूमर की बात करें. ये सारे राइट्स थोड़े अलग थे. अब कंज्यूमर्स अगर बोलें कि कंज्यूमर्स के क्या राइट हैं, सो फिफ्थ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ऑफ कंज्यूमर्स बनाया गया है, जहां पे आप जा करके एक कंज्यूमर, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, वेदर इट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर और इलेक्ट्रिसिटी, whoever consumes electricity is a consumer. So you go to forum for redressal of grievance of consumers under Electricity Act and file an appeal before Electricity Ombudsman. So fifth mechanism of dispute, fifth channel of dispute resolution is this. Sixth channel of dispute resolution with respect to consumer is consumer court. Under Electricity Act, exception and exemption has been provided that a consumer has choice whether it wants to go to CGRF, Forum for Redressal of Grievance of Consumers under Electricity Act and Electricity Ombudsman, or it wants to go to normal consumer. So sixth mechanism है, you go to normal consumer court, district commission, state commission, national commission under Consumer Protection Act 2019. Seventh है permanent लोक अदालत for utility. So consumer can also go under Legal Services Authorities Act 1987 to परमानेंट लोक अदालत, जहां पे आपकी कोई अपील की प्रोविजन नहीं है. इट इज अ कंसेंट डिसीजन. यू इंजीनियर फ्रॉम द पावर कंपनी स्टैंड्स बिफोर यू एंड यू डिस्कस, नेगोशिएट एंड सेटल द मैटर देयर इटसेल्फ. देयर इज नो अपील, नोबडी फाइल्स अपील इन दैट केस. इट इज अ कंसेंट डिसीजन. तो परमानेंट लोक अदालत जो होती है, लोक अदालत इज पीपल्स कोर्ट जिसको बोलते हैं. रिटायर्ड जजेस आर सिटिंग इन दैट पीपल्स कोर्ट एंड यू कैन गेट इट रिजॉल्व्ड. नेक्स्ट इज, अगर न्यू कनेक्शन का मैटर है, इन केस ऑफ न्यू कनेक्शन एक एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है, सेक्शन 43 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. इन दैट केस यू कैन गो डायरेक्टली टू द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ द कमीशन कि सर मैंने न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करा है, मेरा राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, यू द डिस्कॉम हैज टू प्रोवाइड दैट कनेक्शन, एंड अंडर सेक्शन 43 यू कैन अप्लाई अपील डायरेक्टली टू एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ State Electricity Regulatory Commission for new connection. This is the ninth mechanism. Next mechanism is if somebody is electrocuted by electricity wire. So generally what we find is that
जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ही और शी इज द मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग है। अगर इलेक्ट्रिक्यूशन से किसी की डेथ हो रही है तो राइट टू लाइफ का मैटर आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। इन दोज मैटर्स यू कैन गो टू ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड टेल कि माय राइट टू लाइफ हैज बीन टेकन अप, माय हस्बैंड हैज डाइड और whoever is working member who has died. Then National Human Rights Commission or State Human Rights Commission can provide for interim remedy, special case. So ninth channel of dispute resolution is this. 10th channel, let us come to solar power plant. So solar power plant में there is disruption due to COVID और extension of deadline की application है कि भाई deadline आप बढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, because of COVID or because of unforeseen situation or because of change in law, please increase the deadline. In that case, DRC is there, Dispute Resolution Committee. So 10th channel of dispute resolution in power sector is Dispute Resolution Committee. So if you have dispute with Renewable Energy Implementing Agency, जैसे Renewable Energy Implementing Agency चार हैं, one is Solar Energy Corporation of India, second is National Hydropower Corporation of India, third is NTPC, National Thermal Power Corporation of India. अगर इन तीनों से आपका कोई issue है, then you first give a letter or application to REIA, which is called Renewable Energy Implementing Agency को आप application दे दीजिए, please give extension of deadline because there is a force majeure condition. If you're not satisfied with their decision, then you can file an appeal to Dispute Resolution Committee, DRC. So Ministry of New and Renewable Energy बनाती है, which will then decide the matter. All right. अच्छा, after DRC, next is next channel of dispute resolution. अगर environment का issue है तो NGT है, National Green Tribunal. So there are 7 acts जो National Green Tribunal Act के schedule में लिखे हैं. उन acts में अगर कोई issue होता है, जैसे for example it is the Water Prevention Control Pollution Act. So water pollution का issue है, तब you go to NGT. अगर air pollution का कोई issue है, then you go to NGT. Deforestation या forest right का कोई issue है, then you go to NGT. अगर environmental protection, अगर आपको approval लेनी है, consent, and there is a issue, then you go to NGT. फिर उसके बाद अगर environment से related air, water, soil damage से related, forest से related कोई भी issue है, तो then National Green Tribunal is the right forum to go. Next channel of dispute resolution is called Competition Commission of India. अगर competition का issue है, अगर merger and acquisition हो रहा है 2 power companies का, 3 power companies का, consent, उस consent को हम बोलते हैं combination application. Combine कर रहे हैं ना 2 companies. That combination application has to be filed by CCI, Competition Commission of India. Competition Act के अंदर में चला. So this is the next channel. So if there is these channels I am telling in brief so that you are very clear कि किस channel में हमें जाना है जब हमारा dispute या issue आए, so that you take the right channel. ये 20 के 20 channels आप लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए. We will discuss these channels in details also, but for time being let us understand what are the channels available. So competition का अगर issue है कोई भी तो Competition Commission of India. If I am talking about next channel, if you want to challenge a regulation made by State Electricity Regulatory Commission or you want to challenge rules made by state government or central government, in that case you can directly go to the High Court. High Court has constitutional right. उस constitutional right को आप enforce करवा सकते हैं if you want to challenge the regulation. Next is if there is a issue of interstate water. So interstate water का related issues है कि किसको कितनी power मिलनी चाहिए. So then Interstate Water Tribunal is constituted under the River Boards Act 1956 and the Interstate Water Dispute Act 1956. So Article 262 of the Constitution provides for interstate water ट्रिब्यूनल. जब 2 स्टेट्स के बीच में वाटर बेसिन से रिलेटेड इशू है, then that disputes is resolved interstate water tribunal. और इशू इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर आ गया है, लैंड एक्विजिशन होना है. लैंड एक्विजिशन के इश्यूज इन सारे फोरम्स के पास नहीं जाते. इफ यू आर डूइंग प्राइवेट लैंड एक्विजिशन, इन केस ऑफ प्राइवेट लैंड एक्विजिशन यू आर एक्वायरिंग एग्रीकल्चरल लैंड और प्राइवेट लैंड, इन दैट केस इफ देयर इज अ डिस्प्यूट देन द चैनल इज प्रोवाइडेड इन लैंड रेवेन्यू कोड. एंड टिपिकली जो चैनल होता है वो ये होता है, सबसे पहले सब डिविजनल ऑफिसर या सब एसडीएम भी बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं. अपील आपकी जनरली कलेक्टर के पास जाती है, कलेक्टर से अपील आपकी कमिश्नर के पास जाती है और कमिश्नर से अपील जो जाती है आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाती है. ये आपका लैंड इज बिकॉज बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव मेड लैंड रेवेन्यू कोड. उन लैंड रेवेन्यू कोड्स में ये हायरार्की प्रोवाइडेड है फॉर लैंड रिलेटेड इश्यूज व्हेन यू आर एक्वायरिंग प्राइवेट. बट इफ अ गवर्नमेंट इज एक्वायरिंग, इन दैट केस चैनल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और चैनल आता है लैंड एक्विजिशन एक्ट. लैंड एक्विजिशन एक्ट में सीधे कलेक्टर के पास जाता है इशू और फिर कलेक्टर से रेफर होता है. अगर अपील करनी है तो उसको बोलते हैं रेफरेंस. रेफरेंस इज फाइल्ड टू लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी. एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है जो कलेक्टर के बाद वो अथॉरिटी काम करती है. उस अथॉरिटी का नाम है लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी. नेक्स्ट चैनल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो हमने शुरू में पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स है वो डिस्कस करें. फिर हमने कहा स्पेशलाइज्ड एक्ट में जो मेथड्स है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पावर सेक्टर में वो डिस्कस करें. फिर हमने अगर
लैंड एक्विजिशन करना है तो उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की क्या क्या चैनल्स है वो डिस्प्यूट करें। अब अगर आरओडब्ल्यू में इश्यूज है तब मैकेनिज्म क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उस पे आ जाते हैं। तो 17th चैनल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन व्हाइल आरओडब्ल्यू यू आर डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हैज पावर टू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन। आरओडब्ल्यू करते वक्त अगर कॉम्पनसेशन का इशू है देन डिस्ट्रिक्ट जज हैज द पावर। थर्ड, अगर आरओडब्ल्यू में ट्रांसमिशन लाइन जब आप ले कर रहे हैं और आपका जो डिस्प्यूट है वो लोकल अथॉरिटी से है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज पंचायत, देन यू गो टू चेयरपर्सन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड देन अपील टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर। फाइनली जो 20th, अगर आपका डिस्प्यूट नेशनल हाईवे अथॉरिटी से है, इसको बोलते हैं वर्क्स अथॉरिटी एंड रिपेयरिंग अथॉरिटी। वर्क्स अथॉरिटी कंस्ट्रक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज है, रेलवेज है, ट्रैमवेज है। रिपेयरिंग अथॉरिटी जब वो हाईवे और ट्रैमवे बन जाता है तब रिपेयरिंग अथॉरिटी उसको रिपेयर करती है। अब अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको अपनी ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस ओवर करानी है, देन यू हैव टू डील विद वर्क्स अथॉरिटी। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है देन यू हैव टू डील विद रिपेयरिंग अथॉरिटी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द रिपेयरिंग अथॉरिटी, व्हिच इज द वर्क्स अथॉरिटी, एंड यू वांट टू क्रॉस द रेलवे लाइन, another transmission line or a highway, then you have to give a notice. The notice is not replied, disputes will be resolved by independent regulatory commission. So ये 20th dispute resolution का mechanism। इन 20 dispute resolution का channel अगर आपने समझ लिया, अगर 20 लिख लिया कि कौन कौन से dispute कौन कौन से forum पे जाते हैं, पूरे power sector का dispute resolution आपने समझ लिया, and your company will be safe, you will be safe, be more empowered. Let us revise. First is regulatory disputes with respect to tariff and with respect to licensing, they will go to independent regulatory commission जैसे SCRC, CERC, JERC. appeal will be filed in appellate tribunal of electricity and then to supreme. criminal अगर theft का या destroying electricity wire का issue है, then you go to a special court, electricity special court हर district में designated है, नया बनाया गया है, वहां पे आप फाइल करते हैं कंप्लेंट, वो क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, उसकी CRPC के अकॉर्डिंगली वो क्रिमिनल कंप्लेंट डील करी जाती है और फिर अपील जो जाती है वो हाई कोर्ट डायरेक्टली जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जैसे नॉर्मल क्रिमिनल मैटर्स जाते हैं। थर्ड, अगर डिस्कॉम का मनी का इशू है, सिविल इशू है, देन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कितनी सिविल लायबिलिटी पे करनी, कितने पैसे पे करनी, अपील जाएगी अपेलेट अथॉरिटी। फोर्थ, अगर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करना है, पावर परचेज एग्रीमेंट आपको एनफोर्स करवाना है या ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट एनफोर्स कराना है, तो फॉर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट देयर इज एनर्जी आर्बिट्रेशन प्रोविजन प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। दैट एनर्जी आर्बिट्रेशन विल बी गवर्न्ड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, दैट मींस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। दे themselves can become arbitrator or they can nominate authority or institution to do arbitration and appoint arbitral tribunal. appeal will go to APTEL। and then fifth, हमने कंज्यूमर की बात करी। फिफ्थ में कंज्यूमर में ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन का चैनल है जो which is provided under the electricity act itself। seventh, you can go to a consumer forum under consumer protection act। eighth, you can go to permanent लोक अदालत, directly consent decision है। ninth, you can go to adjudicating officer of, अगर आपका न्यू कनेक्शन का मैटर है तो adjudicating officer के पास जाना है। next, 10th, you have to go to national human rights commission अगर इलेक्ट्रिक्यूशन का मैटर और राइट टू लाइफ का अगर मैटर आ रहा है। उसके बाद 11th, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अगर फोर्स मेजर का इशू है और आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए, देन यू गो टू DRC। 11th, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो इन केस देयर इज अ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या फिर आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इशू है, then you go to national green tribunal। competition का issue है, merger and acquisition हो रहा है, 2-3 companies are merging together, then you have to have a approval of competition commission। let us assume next channel है आपका, तो आपके हो गए 10, 11, 12, 13 channel है high court। if you want to challenge the rules and regulations or any act also, you can directly go to file a writ petition in the high court, constitutional remedy। next is if interstate water dispute है, in that case you go to interstate water tribunal। interstate water tribunal will be nominated by the central government and there has been lot of interstate water tribunal, जैसे नर्मदा का है और बाकी कावेरी रिवर का इशू चल ही रहा है बहुत सारा। ऑलराइट, तो 14 लैंड एक्विजिशन पे आ जाओ। प्राइवेट लैंड एक्विजिशन है तो देयर इज हायरार्की, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये हायरार्की आपको अंडर स्टेट लैंड रेवेन्यू कोड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। And this is the channel you go। अगर गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन कर रही है, then in case directly collector is responsible and then appeal goes to land acquisition, rehabilitation and resettlement authority। One authority is constituted and it goes to that authority। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया प्लांट का, अब सिनारियो आ गया कि ROW में डिस्प्यूट है। तो अगर ROW में
ऑब्स्ट्रक्शन है, इन दैट केस यू गो टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही विल रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। लैंड एक्विजिशन में यू आर गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों एक पर्सन हो सकते हैं, बट फंक्शंस अलग अलग है, पोस्ट भी अलग अलग है। 17th इज इफ देयर इज अ इशू ऑफ कॉम्पनसेशन नॉट ऑफ एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का कंपनसेशन का अलग सिस्टम है, जहां पे मैंने पहले बताया है। आरओडब्ल्यू का लैंड कॉम्पनसेशन का इशू, देन यू गो टू डिस्ट्रिक्ट जज, एनहांसमेंट केस बोलते हैं। 19th जो चैनल है, इन केस यू हैव अ इशू विद अ लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी है या पंचायत है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, देन यू गो टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी चेयरपर्सन, ही विल रिजॉल्व द अपील, विल गो टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नॉट टू द कोर्ट्स। एंड 20th चैनल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इफ यू आर क्रॉसिंग ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी या फिर रेलवेज, ट्रैमवेज, कैनाल्स, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे वर्क्स अथॉरिटी और रिपेयरिंग अथॉरिटी के साथ अगर आपका डिस्प्यूट है, देन इट गोज टू द रेगुलेटरी कमीशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। दीज आर द 20 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स और चैनल्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इज आइडेंटिफाइंग द राइट चैनल। इफ उस राइट चैनल में गलत हो गया, दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन एक्चुअली, क्योंकि 3 साल बाद वो कोर्ट बोलेगा कि ऑल्टरनेटिव एफिकेशियस रेमेडीज अवेलेबल, व्हाई आर यू कमिंग टू अस। तो 3 साल 4 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। सो आइडेंटिफाइंग एंड गाइडिंग, प्लीज इन्फॉर्म इट। ये जो मैंने 20 चैनल्स बोले हैं, अपने सीनियर को, अपने डायरेक्टर को या अपने सीएमडी को बताइएगा कि ये 20 चैनल्स अवेलेबल, और उन 20 चैनल्स में दिस इज द राइट चैनल विच वी शुड टेक।